क्रमशः भगवान शिव की परिक्रमा करते रहते हैं और जब उनकी परिक्रमा का 12 वर्ष पूरा हो जाता है तब कुंभ लगता है। देवता और असुरों के बीच में अमृत को लेकर के जो युद्ध हुआ था 12 दिन तक चला था, इसलिए देवताओं के दिन के अनुसार से 12 वर्षों बाद कुंभ लगता है और जब 144 का अंक होता है पूर्ण कुंभ लगता है। चौथा विषय हमारे यहाँ जो शास्त्रों में है वह यह है कि 12 अंगुल का ही मेरा यह अंक होता है, जिसमें शिवलिंग की जो स्थापना होती है, जो मूर्तियां स्थापित होती हैं 12 अंगुल से बड़ी किसी घर में प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए उन्हीं 12 अंगुल को आधार मान करके 12 के अंक को हम लोगों ने भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप में देखा है। इसलिए जब वह अंक पूर्ण होता है तो कुंभ लगता है। और ये कुंभ तो जब जैसे ही मकर राशि का सूर्य अपने दिव्यतम स्थानों में प्रवेश करता है तो गुरु और मकर की दिव्य गति के अनुसार से ये पावन कुंभ जब हम सब के लिए आता है तो अमृत की कृपा और दया को भी प्रदान करने लगता है, क्योंकि ऐसे कुंभ में आने के बाद मोक्ष की कल्पना करने वाले योगियों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है, सिद्धियों को सिद्धि और रिद्धियों को रिद्धि, विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, पुत्रार्थी को पुत्र और राजार्थी को राज प्राप्त हो जाता है। शिव योगी मौनी स्वामी अमेठी। हर हर महादेव कर रहे हैं। अरे तो वहां ना जाइए ना जहाँ खड़ी है आप।
Biggest festival of Sanatan Hinduism, and how you know about this Mahakumbh? It's from Jitesh that I know. Yeah. And are you excited to come here? Yes, very much. Yeah. What's your name? Hi, Jitesh. I'm basically grew up in Mysore and now living in Germany and looking forward for 2 days of great excitement and spiritual experience in Kumbh. सर विदेश जाने के बावजूद भी जो संस्कार है संस्कृति है उसको आप मानते हुए भारत आए हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ इस महाकुंभ में क्या कहना चाहेंगे? अगर यहाँ रहेंगे कि बाहर रहेंगे स्पिरिचुअलिटी में इज ऑलवेज गुड. मैं योगा भी प्रैक्टिस करता हूँ बाहर रह के डेली प्रैक्टिस करता हूँ. सो वैसे constant contact should be there, grounding should be there, and traveling towards inner self and knowing yourself should be there. So this is all we always keep practicing and keep a constant work on it. Dhanam Jayananda. And where are you from? South Africa. South Africa. Yes. How was your experience about Mahakumbh? You came here. It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of You the have Kumbh a Mela. beautiful tilak on your forehead. What Yeah. about this get-up? We practice Sanatana Dharma around the world. We have a Guru Paramahamsa Vishwananda, and we practice our Sanatana Dharma. We teach it. you We spread it in the believe West. in Hinduism? Yeah. How start your journey? How you start? We landed on the 1st of January. We went up to Nainital, up to Dunagiri, all the way down to Varanasi, and now today we've come to take Snan with all the other pilgrims from around the world. You know, it's very beautiful. So you all are from South Africa? Cape Town. Cape Town. Yeah. What's your name? Nikki. Nikki. So you came first time in India or before? I was in Kerala in 2019, but I haven't been to this part. It's very, very beautiful. So how do you think about Mahakumbh? It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. The main thing is today is Shahi Snan, so you will go to Yamuna Ji and take a dip. Yes, for sure. Absolutely. Yeah, that's why we came. Yeah, thank you. Come, Jeremy, stand in the light. What's your name? My name is Jeremy. Okay, that's really great. So how was your experience about Mahakumbh? It's been beautiful to come and see Gangama, Yamunama, Saraswati Ma. You It's a also blessing. live in Sanatan Yeah. Dharma. Okay, so how long you start practicing Sanatan? Wait. Wait a second. Wait. What's your good name and where are you from? I'm Russian. I have two citizenships, Russian and German. And I came from Berlin right now. So Say about it. it's great. It's just great. Har Mahadev. Holy dip in. You take a holy dip in Triveni and Sangam? I don't hear you. Holy dip in Triveni and Sangam? No, we came here just for 1 day. No, a holy deep. You swim. Yeah. I just swimming really very, very, very deep and very, very high. What about arrangement and all things? Infrastructure? I don't actually I cannot answer you properly because I don't understand what's going on exactly around me. You see so many people. It is first time in my life experience. I get such participate so great event. Even I love festivals, I love musical festivals, but spiritual festivals, it is my first experience, yes. Here. Good or bad? Don't ask. End of the day. It is, no, it is great, it's just great. Yes. Namaste, namaskar. Hello, Christina is here. आप कैसे हो?
Mera Bharat Mahan. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe. And India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga river. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. Yeah, 7 years. Before 6 years, you are practicing Sanatan Dharma. What things admire you to become a Sanatani or become a Hindu? The logic. It makes sense. There's the faith, but also there's no blind faith. It's beautiful. Great. Thank you so much. Hello. What's your name? Jonathan. Jonathan. Yeah. This is your first time in India? First time in India, yeah. Okay. Yeah. And how was your experience? Oh, excellent. I think the people are lovely, and I think the food's been amazing and so forth, and seeing all of the pilgrimage sites and holy sites and so forth, temples, have been absolutely amazing. Before, have you been ever heard about Mahakumbh? Only this year. Only this year? Yeah. So, yeah. what do you think about Mahakumbh? How was your overall experience about it? You are just coming here, I know. Yeah, we're just coming here yesterday, and obviously there's a lot of people, so we're hoping to take one of the royal bathes and so forth. So yeah, but it's exciting. Yeah. Yes, I come from to go for Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. Moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India. I go Varanasi, then I come here. Feeling amazing. I feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram. What's your name? What's your name? Francisco. Francisco. Okay, Yes. thank you. God bless. Thank you. अरे वहीं का पानी आ रहा है, यहीं नहाइए, वहाँ जाएंगे, बोट लेके जाना पड़ेगा। हो गया लगा देना, ठीक है, ये फिर रहेगा। अरे भैया एक करके बाहर निकल दिया।
से जय श्री राम, जय श्री राम। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। आपको बताते हैं आज पूर्णिमा है, जो कि महाकुंभ का पहला स्नान है। सुबह करीब 9:30 से 60 लाख श्रद्धालु ये आंकड़ा करीब 1 करोड़ तक पहुँच सकता है। 12 किलोमीटर के एरिया में घाट बनाए गए हैं, जो कि श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं। आज से महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का जत्था पे जत्था आ रहा है। महाकुंभ में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आरंभ हो चुका है। तमाम श्रद्धालु देश विदेश के अलग कोनों से आकर आज शाही स्नान में सम्मिलित हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप भी पहुंचे? हम भी आए थे, सुबह स्नान किया तो बहुत अच्छा लगा हमें। प्रशासन और शासन की बहुत अच्छी यहाँ पे आयोजना हुई है। सरकार ऐसी योजना करती रहे। इतनी भीड़ है, लोगों के लिए इतना अच्छा आयोजन किया गया है, हमें बहुत अच्छा लगा। आप साथ से आए हैं, कब आए वहाँ से, और इतना बड़े आयोजन का कहीं ना कहीं विश्व में भी एक पहचान है? बिल्कुल, हमें 2 दिन हुए हैं। हम सिर्फ महाकुंभ अटेंड करने के लिए आए थे कि 144 साल के बाद कुंभ लग रहा है, तो ऐसे भव्य त्योहार में आएँ और अपने वहाँ के दोस्तों को बताएं कि भारत में आयोजन कैसा होता है। अपना नाम बताएं। समिया। आप कहाँ से हैं? हम टेक्सास से, डैलस टेक्सास। टेक्सास से हैं, इंडिया पहुँचे हैं आप, महाकुंभ में शामिल होंगी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा था, इट वाज रियली गुड। बहुत अरेंजमेंट्स और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। हमारे बहुत इजी हो गया, क्योंकि जो सुना था तो उस हिसाब से बहुत अच्छा हो गया। तो मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था मेरा। हज़ारों किलोमीटर का सफर करके प्रयागराज आई है, एक कहीं ना कहीं ऐतिहासिक महाकुंभ है। तो हमारे लिए ये था कि हम लोग आए देखें कि इंडिया में कैसी होती है चीज़ें। तो अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और सब इजीली हो गया। ज़्यादा केओस नहीं है, थोड़ा इजीली चल रहा है, सब अरेंजमेंट किया हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम। विदेशी भक्तों ने बुर्की लगाई है। आप देख सकते हैं ये भजन हवन चारों तरफ जय जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। वहाँ पर करीब 40 साल बाद लगाया सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं पर
खोज कर रहा हूँ। भारत दुनिया का आध्यात्मिक गृह है। जय श्री राम, जय श्री राम। के सभी रास्तों पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है, जो कि पैदल चलकर संगम तक पहुँच रहे हैं। आज से ही श्रद्धालु 45 दिनों तक कल्पवास शुरू होकर सभी रास्तों पर भक्तों की भीषण भीड़ लगी हुई है। संगम घाटों पर हर घर करीब 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। ये आंकड़ा करीब 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। जो कि भूतपूर्वा हर तरफ जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। महाकुंभ का शोभा हो चुका है। आप जल्द से जल्द कुंभ का नज़ारा देखें। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? पहली बात तो ये कुंभ का मेला, बड़ा अलबेला, क्या प्लान किया है आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री के, दोबारा करता हूँ मैं इसको। गुरु जी, कुंभ मेले की शुरुआत और पौष पूर्णिमा का पहला स्नान कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? पहला स्नान अद्भुत स्नान। आज जब स्नान करते हुए लोगों ने, जो मैंने उनके चेहरों पर जो खुशियां देखी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। लगता कि स्वर्ग मिल गया, पुण्य मिल गया, सब मिल गया, सब मस्त थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव गाते हुए लोग झूम रहे थे, गा रहे थे, मस्त हो रहे थे और स्नान कर रहे थे। आंखें बंद थी लेकिन भीतर कुछ खुल रहा था, अपने राष्ट्र के लिए, अपने विश्व के लिए, शांति के लिए, मानवता के लिए। ये है स्नान, जो अपने लिए नहीं पूरे विश्व की बात करता। और दूसरी बात, मैं तो कहना चाहता हूँ पौष पूर्णिमा, मुझे लगता है कि ये पानी पूर्णिमा बने। पौष पूर्णिमा पानी पूर्णिमा बने। पानी है तो प्रयाग है, पानी है तो स्नान है, पानी है तो कुंभ है। नो पानी नो कुंभ, नो पानी नो कॉन्फ्रेंस, नो पानी नो मेला। इसलिए क्योंकि माँ हमको जन्म देती है और जीवन देती है, लेकिन ये नदियाँ हैं ना, हमको जीविका भी देती हैं और जीवन भी देती हैं। इसलिए इन नदियों को बचा कर रखना है। जल है तो स्नान है, जल है तो पुण्य है, जल है तो दिव्यता है, जल है तो शुद्धता है, और जल है तो ये विश्व है। इसलिए आने वाले समय में जल की कमी होगी, इसका भी संकल्प लेकर जाएं, तभी ये पौष पूर्णिमा बनेगी। पूर्ण माँ ही पूर्ण होती है ना, ऐसे ही नदियाँ भी कम पूर्ण नहीं हैं। इसलिए आइए इस विश्व को पूर्ण रखना है। पौष पूर्णिमा का ये संकल्प भी कायम रखें, तभी ये नदियाँ सचमुच माने तो जीवित रहेंगी। वे जीवित रहेंगी तो हम नदियाँ हैं तो दुनिया है, सीधी सीधी बात है। और नदियाँ हैं तो कैसे हैं? नदियाँ जंगल की वजह से आती हैं, और जंगल कैसे बनते? पेड़ों की वजह से। तो जंगल बचेंगे तो नदियाँ बचेंगी, लेकिन पेड़ लगेंगे तो जंगल बचेंगे। इसलिए पेड़ लगाओ, ये संकल्प लेके जाओ। एक पेड़ माँ के नाम, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने कहा, आइए उसको भी दोहराएं। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, भारत माता की जय। गुरुजी, आश्रम में हम आपके देख रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को जिस तरह से आपने बैन करा है, कई चीज़ें हमने देखा, प्रेशर मशीन लगी हुई है, पानी की बॉटल्स जो है